Wow. I guess I'm before time, but anyway, namaskar all of you. Good evening. Hello Sadanand. Hi Navin. Nice to see all of you. Hello Sunita ji. Namaskar. Hello Mita ji. Hello Rashmi, how are you? Hi Priyanka, Sumit. Wonderful to see you all so ready for this session. Good evening Komal, good evening. What are we making today? Definitely, give me exactly a minute or so. I'll start sharing exactly what I'll be making today. Good evening Navin, good evening. नाइस टू सी ऑल ऑफ यू, नाइस टू सी. जी बिल्कुल, बस थोड़ा सा वक्त हम आपको बताएंगे हम क्या कर रहे हैं आज. मीनाक्षी जी नमस्कार. आई एम गुड जेनी, हाउ आर यू? गुड इवनिंग विराज, गुड इवनिंग. हाय रुचि, हेलो. दुर्गा बैनर्जी केमन आছেন? हेलो, ऑल गुड. गुड इवनिंग राजेश जी. Sadhana, good evening. Sumit, good evening. Hello. What's new today? Hello, Devesh. Hello, everyone. I think we should start. Wonderful. नमस्कार. मैं शेफ रूपम सरकार आप सभी का स्वागत करता हूँ for this evening's cooking live demonstration. It is an honor for me to be here today. Thank you Amul, thank you Manuji for trusting in me and giving me this opportunity to showcase my talent, whatever I have as a chef, in front of all of you. Thank you very much. Basically I'm a chef professionally for the past 22 years. Hello everyone. And as a chef I've been working all across India and abroad, but filhal I represent a luxury chain of hotel, Shaurya Collection Hotels and Resorts in Udaipur as the corporate general manager. So nice to see all of you today. So nice. Thank you very much for coming in. Kavita ji, thank you. Hello, namaskar. Okay, you have been asking me what exactly I'll be doing today. Yes, we're all trying to stay safe. Exactly. Today's dish is very simple. It's आप इसको starters बुला सकते हैं, आप इसको salad बुला सकते हैं. It's basically a dish which is called grilled cottage cheese and a grilled paneer with garlic tossed potato, and it will be dressed with a tomato mustard dressing. I hope this sounds interesting. Hello everyone. Hello. Hi Sangeeta, I'm good, thank you. How about you? Hi Pallavi, Sanjay, Praveen. Nice to see all of you. Very nice to see all of you. आज जो हम यूज़ करने वाले हैं अमूल प्रोडक्ट्स, वो है अमूल कॉटेज चीज़ यानी अमूल पनीर, अमूल बटर और अमूल प्रोसेस चीज़. मैं बड़ौदा से बिलोंग करता हूँ, तो अमूल मेरे लिए काफ़ी इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज अमूल इज सिचुएटेड इन आनंद, जो बहुत नज़दीक है बड़ौदा से. एंड इट हैज़ बीन माई it has been my pleasure and an honor to visit Amul many times, many years back though, and it was nice watching the production of various products under Amul. Anyway, I thank once again
the entire family of Amul. Thank you Manu ji for giving me this opportunity. Anyway, अब हम शुरू करते हैं आज का रेसिपी जो बहुत ही आसान सा है, बहुत सिंपल है. एंड आई रिपीट, इट्स कॉल्ड द ग्रिल्ड कॉटेज चीज़. जब मैं ग्रिल बोलता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ पैन ग्रिल. येस, ऑल इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स, एब्सोल्युटली. रोज़मर्रा में जो यूज़ होता है इंग्रेडिएंट, मैंने उसी को यूज़ करने की कोशिश करी है. बिकॉज मैं उदयपुर में हूँ, उदयपुर में कर्फ्यू लगा है सब जगह, तो आई कांट गो एनीवेयर एंड बाय स्पेशल इंग्रेडिएंट्स. सो जो भी मेरे पास अवेलेबल था और जो भी मैं घर में बना सकता हूँ उसी का मैंने यूज़ किया है. अब आप देखेंगे मैंने उसको कैसे यूज़ किया है. ओके, गोइंग बैक टू द डिश दैट आई विल बी मेकिंग टुडे इज, एज आई सेड बिफोर, दिस वुड बी grilled pan grilled cottage cheese यानी पनीर with garlic tossed potatoes and tomato mustard dressing of course. इसके साथ में 2-4 और सब्जियां मैंने यूज़ करी हैं, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा वो क्या क्या हैं. फिर भी मैं आपको कह देता हूँ. जैसे डिश का नाम है पनीर, तो हम पनीर क्यों यूज़ करेंगे. इसको हमने स्लाइसेस में काटना है, जो हमको बताऊँगा कैसे करना है. इसके साथ साथ जब मैं गार्लिक टॉस पोटैटो बोल रहा हूँ तो ऑब्वियसली गार्लिक यूज़ होगा. सो आई विल बी हैविंग बॉइल्ड गार्लिक क्यूब, जो मैंने क्यूब्स में काटा हुआ है ऑलरेडी, जिसको मैंने बॉईल करके रखा हुआ है. येस, आई डिड विजिटेड अमूल मैनी टाइम्स. तो आलू के साथ में आई हैव सम जूलियंस ऑफ बॉइल्ड कैबेज. मतलब कैबेज को यानी पत्ता गोभी जो है उसको मैंने जूलियंस में काट करके उसको बॉईल करके मैंने उसको रिफ्रेश किया हुआ है ठंडे पानी में. उसके साथ there is julienne of capsicum and I've used the local and the seasonal flavor यानी कच्चा आम, तो थोड़ा सा ripe हो गया है but it tastes very nice. I've used that and it is parboiled almost, आप कह सकते हैं कच्चा ही है but then it's parboiled. Apart from that, इसके साथ मैंने पनीर जो कॉटेज चीज़, माई अपॉलॉजीज, जो ये अमूल चीज़ क्यूब्स है, इसको हमने क्यूब्स में यानी छोटे छोटे पीसेस में काटा हुआ है और उसको हमने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और बारीक कटा हुआ धनिए में यानी कोरिएंडर, चॉप कोरिएंडर, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट और थोड़ा सा पैप्रिका पाउडर में उसको हमने मैरिनेट किया हुआ है. येस, आई लव ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ अमूल टू. येस, एब्सोल्युटली. इसके साथ हम यूज़ करेंगे मस्टर्ड सॉस यानी मस्टर्ड पेस्ट, चॉप्ड गार्लिक, ऑलिव्स लिया है मैंने यानी जैतून. मैंने दोनों तरीके का लिया हुआ है यानी ग्रीन और ब्लैक. और इसके साथ हम आज यूज़ करेंगे सन ड्राइड तो नहीं कह सकते, ओवन ड्राइड टोमेटो, जो मैंने खुद घर में बनाया हुआ है. बेस्ट वे टू कट जुलियन. ओके, I'll have to show you then. Okay, you just what you have to do is basically अगर आप फॉर एग्जांपल कैप्सिकम काट रहे हैं तो कैप्सिकम को आपने स्लाइस कर लिया है. स्लाइस करके आपको ऊपर से थोड़ा सा और उसका जो हल्का सा वाइटिश जो ऊपर रहता है उसको निकालना पड़ता है. और एंड देन 2 मिनट का मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, साइड में रख रहा हूँ. और करने के बाद में you just have to put your fingers like that and you have to cut this way. Okay, this is how you get the juliennes of capsicum. बहुत आसान है, थोड़ा सा वक्त लगता है ऑफ कोर्स. हमने तो काफ़ी ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग करी है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बट डिफ़िकल्ट ज़रा भी नहीं है. आप जितना कोशिश करेंगे उतना ही बेहतर होते जाएगा. ये ऑलिव्स अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी. मैंने थोड़ा सा इसमें वेरिएशन लाने के लिए ऑलिव्स यूज़ किया है. इट इज़ नॉट मैंडेटरी. ओके, यस देवश्री, हाउ आर यू. हाउ टू ओवन ड्राई टमेटो. ओवन ड्राई टमेटो को जो टमाटर है उसको हमने काटना है 1/4 क्वार्टर्स में काट करके उसका जो पल्प है उसको निकाल के रखना है. उसको फेंकना नहीं है, उसको हमने यू कैन यूज़ इट फॉर योर ग्रेवीज, योर करीज. उसको प्योरे कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं. और जो बाकी का जो उसका बचता है
उसको हमने गार्लिक, हर्ब्स, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, पेपर में मैरिनेट करके माइक्रोवेव में 10 से 12 मिनट उसको माइक्रोवेव करना है। आपका ओवन ड्राई टमेटोज तैयार। मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल, डेफिनेटली। ओके, हम शुरू करते हैं आज का जो डिश। सबसे पहले जो है ये बोल में ले रहा हूँ, ऑब्वियसली टू मेक द मैरिनेशन ऑफ पनीर। ओके, उस मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमने लेना है मस्टर्ड सॉस। जो नॉर्मल मस्टर्ड सॉस अवेलेबल होता है। यस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एब्सोल्युटली। तो मैं कह रहा था वॉटेवर और जो भी तरह का मस्टर्ड सॉस मार्केट में अवेलेबल होता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल सा एक मस्टर्ड सॉस लिया जिसको हम लोग काशुंदी भी बोलते हैं, बंगालीज ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। ओके, और इसमें हमने ऐड करना है हर्ब्स। अच्छा, मैंने हर्ब जो इसमें लिया है दैट इज़ आई हैव टेकन 2 हर्ब्स, एक ऑरिगेनो, दूसरा थाइम। जैसे कि अब हम सब जानते हैं, हम सब लॉकडाउन में घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो मुझे फ्रेश बेसिल या फ्रेश हर्ब्स नहीं मिला। तो जो, जैसे मैंने कहा पहले भी, जो मेरे पास अवेलेबल था मैंने उसी को यूज़ करा है। तो इसमें मैंने फ्रेश हर्ब्स यानी ड्राई हर्ब्स, ड्राई ऑरिगेनो और ड्राई थाइम का इस्तेमाल किया हुआ है। राइट, इसमें थोड़ा सा और मैं ऐड कर देता हूँ हर्ब्स, और स्वाद अनुसार हमने नमक इसमें डाल दिया है। ये ऑलिव ऑयल, वंडरफुल, और इसको हमने विस्क करना है। Kashundi is a type of mustard. It's a mustard basically. Very simple. ये मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है, बिकॉज आई एम अलोन, मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है, तो मैं ही शेफ़ हूँ और मैं ही मेरा खुद का हेल्पर हूँ। तो यू हैव टू एडजस्ट। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे दिखता है। Recipe Vishal is grilled cottage cheese with garlic tossed potatoes and mustard tomato dressing. हमने इस ड्रेसिंग के लिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, हमने इसमें मस्टर्ड लिया हुआ है, मस्टर्ड पेस्ट, इसमें स्वाद अनुसार नमक, और थोड़ा सा हमने इसमें मिक्स्ड हर्ब्स यानी कि ऑरिगेनो और थाइम यूज़ किया हुआ है जो ड्राई है। मेरे पास फ्रेश हर्ब्स अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए मैं ड्राई हर्ब्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। राइट, ये जो मैरिनेशन हमारा रेडी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई जस्ट टेक द फोन विथ मी। This is how it looks. ओके, अब ये मिक्स हो गया है, द मस्टर्ड एंड द ऑलिव ऑयल। Yes, you can use a normal vegetable oil or sunflower oil, but when we talk about salads or when we talk about continental food, मैं प्रेफर करता हूँ ऑलिव ऑयल यूज़ करना। ऑलिव ऑयल सेहत के लिए भी अच्छा होता है, तो कोशिश करें ऑलिव ऑयल यूज़ करना। ऑलिव ऑयल तो आजकल मार्केट में बड़ी आसानी से अवेलेबल है। अब जो पनीर हम ले रहे हैं, यह है अमूल कॉटेज चीज़ यानी अमूल पनीर। ब्रिलियंट। इसको हमने काटना है
ठीक है, मैं इसको स्लाइस में काट रहा हूँ। ये जो ट्रिमिंग्स है इसको आपने फेंकना नहीं है, इसको वी कैन ऑलवेज यूज इट इन सम अदर डिश, यू नो। और इसको मैंने ऐसे सेंटर से काट लिया है सो दैट हमें ये पतला यानी थिन सा पनीर के स्लाइसेस मिल जाए, राइट। सिर्फ 2 चाहिए हमें, और ये हमने इसमें डाल दिया है। बाकी का जो पनीर बचता है, जैसे मैंने कहा, उसको फेंकेगा मत, ऑफकोर्स उसको यूज़ करना है। बढ़िया सा पनीर मखनी बना लेते हैं या पनीर भुर्जी हो जाएगा उससे। ओके, अब ये जो मैरिनेशन हमने तैयार किया था उसको हमने पनीर को मैरिनेट करना है। बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है, कोई नथिंग दैट आप समझ नहीं पाएंगे, बहुत आसान सा है। बस ड्रेसिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, एंड जितना ज़्यादा आप कुछ चीज़ को मैरिनेट करते हैं तो उसका स्वाद ज़्यादा उभर के आता है। Anyway, so this is how we have marinated. I just wipe my hands off. आपको मैं दिखाई देता हूँ कैसे ये दिखता है। I'll show you. ये ऐसे दिखेगा। ओके, तो अब ये जो पनीर है यानी कॉटेज चीज़ है, इसको हमने अभी ग्रिल नहीं करना है। इसको कुछ वक्त तक इस मैरिनेशन में हमने इसको मैरिनेट करना होगा, बिकॉज द मोर यू मैरिनेशन जो है वो पनीर विल होपफुली यू नो सोक इट, एंड द मोर द मैरिनेशन द बेटर द टेस्ट, यू नो। सो अब इसको हमने साइड में रखना है। कहाँ रखूँ? यहाँ रख दी मैंने। ओके, अब जो है एक काम करते हैं, बिकॉज इसको इसमें निकाल देते हैं। ये लीजिए, ये हम अब इट इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस, इजंट इट? ब्यूटीफुल। ऑलिव ऑयल थोड़ा ज़्यादा भी डल जाए तो कोई दिक्कत है नहीं, बिकॉज ऑलिव ऑयल सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सो यू नो इट डजंट रियली मैटर। ये आपके पनीर यानी कॉटेज चीज़ ग्रिलिंग के लिए तैयार है, लेकिन अब नहीं, थोड़ी से देर के बाद में। थैंक यू विपुल, थैंक यू वेरी मच। What types of fresh herbs can be used? Vijay, we can use जैसे मैंने ऑरिगेनो यूज़ किया है ड्राई, आप फ्रेश ऑरिगेनो यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रेश थाइम यूज़ कर सकते हैं, आप बेसिल यूज़ कर सकते हैं, आप मार्जराम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मस्टर्ड पेस्ट अगर ना हो तो आप मस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिल्कुल। रिपीट रेसिपी, डेफिनेटली दीपिका मैडम, दीपिका मदन, यस दीपिका जी, जो आज का रेसिपी है वो ग्रिल्ड कॉटेज चीज़ विथ गार्लिक टॉस पोटैटोस, और इसको हमने सर्व करना है। कुछ और इंग्रेडिएंट्स हमारे साथ में आज मैंने रखा है यहाँ पे,
and that will be dressed up in a mustard tomato dressing. Recipe is very simple. मैंने सबसे पहले तो जो मैरिनेशन है पनीर के लिए उसको बनाया था. इसमें मस्टर्ड पेस्ट, सॉल्ट और हर्ब्स डाल करके मैरिनेट, यानी पनीर को स्लाइसेस में काट करके इसको हमने मैरिनेट करने के लिए रख दिया है. फ्रेश हर्ब्स, जैसे मैंने कहा, फ्रेश ओरेगानो है, फ्रेश थाइम है, फ्रेश बेसिल है, फ्रेश मार्जोराम है, बहुत सारे फ्रेश हर्ब्स हैं जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ज़रूर शेफाली. आई एम मेकिंग टुडेज रेसिपी is, rather the dish name is grilled cottage cheese with garlic tossed potatoes with mustard tomato dressing. Okay, I'll continue now. मैं जिसमें मैंने मैरिनेशन बनाया था, I will make the dressing इसी में, so that उसका भी टेस्ट इसमें आ जाए, प्लस जो हम ड्रेसिंग कर रहे हैं दोनों मिला करके और बढ़िया सा एक टेस्ट आ जाए उसमें. Of course, I have used dried herbs. You can definitely use dried herbs. I have used mixed herbs. You can use mixed herbs. Yes. Right. अब हम ड्रेसिंग बनाएंगे. जैसे मैंने कहा, इसका नाम है मस्टर्ड टमेटो या टमेटो मस्टर्ड. इसको हमने इसके अंदर फ्रेश टमेटो जूस जो मैंने बनाया है, हमने उसको वो ऐड करना है. नथिंग, टमाटर लेना है, मिक्सी में घुमाना है, जो उसका पल्प है उसको स्क्वीज़ करके उसका जो पानी है वो बन जाता है आपका टमेटो जूस. यस, ये हमने डाल दिया है टमेटो जूस. ओके, अब इसमें डलेगा हर्ब्स. मैं मिक्स हर्ब्स यूज़ कर रहा हूँ. मिक्स यानी दो टाइप के हर्ब्स हैं इसमें. नो, आई हैव नॉट यूज कर्ड इन इट. दही मैंने यूज़ नहीं किया हुआ है. ये हर्ब्स मैं डाल रहा हूँ. इसमें दो टाइप के हर्ब्स हैं. ये ड्राई है, इसमें ओरेगानो और थाइम यूज़ किया हुआ है मैंने. ओके, मुझे हर्ब्स थोड़ा ज़्यादा पसंद है, थोड़ा डाल देता हूँ. ओके, अब इसमें डलेगा नमक. अब जो मैंने आपको पहले कहा था दैट मैंने घर पर ही ओवन ड्राई टमेटो बनाया है, बस उसको भी हमने ऐड करना है. दिस गिव्स यू अ ब्रिलियंट फ्लेवर, यू नो, बिकॉज जब इसको हमने बनाया है तभी हमने इसमें बहुत सारे ऑर्गेनो और थाइम और पिंक सॉल्ट और ऑलिव ऑयल और गार्लिक डला हुआ है, तो ऑब्वियसली इसका जो टेस्ट है इट हैज़ टू बी अमेजिंग, एंड इट इज़ अमेजिंग, बिलीव यू मी. और लास्ट में इसमें हमने यूज़ करना है मस्टर्ड पेस्ट, राइट. और जो पहले हमने किया था उसी तरह से इसको भी हमने विस्क करना है, यानी मिक्स करना है. No, I didn't make mustard paste, Kanan. You can get ready-made. There are a lot of different kind of mustard paste. You can use the Indian version of it. You can use the English mustard. You can use the French mustard. You can use the Dijon mustard. There are so many mustards that is available in the market. How many spoons of tomato juice? I've used 4 tablespoons of tomato juice. 4 to 5. Yeah, 4. और इसको हमने विस्क करना है. विस्क इट टू मेक इट टेस्टी. oven dried tomato. Sujata, oven dried tomato is very easy. टमाटर को हमने काट 1/4 यानी क्वार्टर्स में काट करके उसका जो पल्प है उसको निकालना है, और स्किन के साथ में थोड़ा सा जो उसका पल्प रह जाता है उसको हमने ऑलिव ऑयल, गार्लिक, हर्ब, सॉल्ट और पिंक सॉल्ट में उसको मैरिनेट करके उसको हमने ओवन यानी माइक्रोवेव में 10 से 12 मिनट तक हमने उसको माइक्रोवेव करना है. बस उसके बाद एक बोतल में उसको डाल करके
उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिला करके साथ, सो दैट ये जो टमाटर है वो ड्राई हो जाता है एक्चुअली माइक्रोवेव के बाद में, लेकिन इसमें हम टमाटर जब ऑलिव ऑयल ऐड करते हैं तो ये क्या मॉइस्ट रहता है, यानी सॉफ्ट रहता है। जी बिल्कुल कर सकते हैं सनड्राइड टमेटोज। अगर आपको छत में जाना अलाउड है या फिर आपके बैल्कनी में धूप आता हो तो बिल्कुल आप सन ड्राई करें। मेरे यहाँ पे तो नहीं है, तो मैंने उसको ओवन में ड्राई कर दिया। हाउ यू मेक टमेटो पेस्ट, एज इन जो मैंने यूज़ किया इसमें, इट इज़ अ टमेटो जूस। कुछ नहीं है, रॉ टमेटो को हमने लिया है, उसको फिर मिक्सर में एक बार घुमाना है, ठीक है। जो मैंने इसमें यूज़ किया है ओवन ड्राई टमाटो बनाने के लिए, जो पल्प इसका मैंने निकाल के रखा था उसी को मैंने यूज़ किया है। What thing I added the oven dry tomatoes. How do you oven dry? It is, I have a microwave oven, तो उसको सिर्फ कुछ नहीं करना है, माइक्रोवेव बटन, माइक्रोवेव दबा करके you just have to microwave it for 10 to 12 minutes और ये हो जाता है। वंडरफुल। आपको मैं दिखा देता हूँ ये ड्रेसिंग कैसे दिख रहा है। This is how it's looking, gorgeous। अगर आपके पास अवेलेबल है सन ड्राइड टमेटोज तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। राइट, आपका ये ड्रेसिंग तैयार है। अब हम शुरू करते हैं ये स्टार्टर कम सैलेड को बनाना। Pleasure is all mine, Debashri. Okay. इसको हमने इंडक्शन में बनाना है। What I'll do first is do the garlic tossed potatoes, yeah. जो गार्लिक टॉस आलू है उसको सबसे पहले हम बनाएंगे। ये हमने आलू लिया है, जो इसको बॉईल करके इसको क्यूब्स में काटा है, या फिर क्यूब्स काटने के बाद इसको नॉर्मल हल्का सा नमक के साथ आप इसको बॉईल कर सकते हैं जब तक ये पूरी तरह पक ना जाए। थोड़ा सा हल्का सा इसको कच्चा रखिएगा, बिकॉज ज़्यादा अगर पक जाएगा तो व्हेन यू इसमें जब फ्राइंग पैन में आप इसको टॉस करेंगे तो ये टूट जाता है या टूट जाएगा। Yes, I'll try to post it on my Facebook page. I'll let you know about it. Right, okay. अब हमने क्या करना है, हमने इसको टॉस करना है। टॉस करने के लिए ये हम ले रहे हैं ऑलिव ऑयल, My Insta handle is @chef Roopam. My name, Chef Roopam. इंडक्शन का एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है नॉर्मली हम जो शेफ्स हैं वी ट्राई टू टॉस इट। नॉर्मल बर्नर में उसको टॉस करने की कोशिश करते भी हैं, बड़ा अच्छा कर लेते हैं, लेकिन द मोमेंट इसको हम पिकअप करते हैं तो बंद हो जाता है, तो can't do it। ये इसमें हम गार्लिक डाल रहे हैं,
गार्लिक को हमने ब्राउन नहीं करना है। अवेलेबल ऑन फेसबुक, यस। इसको सिर्फ हल्का सा ही सौते करना है हमें। अब हमने इसमें ये जो आलू है इसको डालना है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और मिक्स्ड हर्ब्स। इसको हमने पकाना नहीं है बिकॉज आलू इज़ ऑलरेडी बॉइल्ड, तो इसको कुक नहीं करना है, इसको हल्का सा टॉस करना है सो दैट गार्लिक का जो फ्लेवर है, लहसुन का जो फ्लेवर है वो आलू में आ जाए। और ज़्यादा कुक करेंगे तो क्या होगा, आलू का जो शेप है वो बिगड़ सकता है। तो हमने इसको धीरे से टॉस करना है। Alright, wonderful. ये जो हमारा आलू है ये अब तैयार है। ये हमने इसमें डाल दिया है आलू। आप देख सकते हैं क्या, मैंने इसको ज़्यादा टॉस नहीं करा है बिकॉज जैसे मैं कहा, आप ज़्यादा टॉस करेंगे तो क्या होगा, आलू का जो शेप है ये टूट जाएगा, इनफैक्ट ये बिखर जाएगा, वो हमें करना नहीं है। अब जो टाइम आ गया है वो है पनीर को ग्रिल करना। आई एम नॉट यूजिंग एनी चिली फ्लेक्स हियर। अगर आप चाहते हैं आप कर सकते हैं। आई हैव यूज्ड पेपरिका दो। I've used paprika in my paprika mayo which will come when I will do the presentation. जब मैं प्लेटिंग करूँगा तब जो मैं मेन्यूज़ यूज़ करूँगा उसमें हमने paprika यूज़ किया हुआ है। इसको हमने पैन ग्रिल करना है दोनों तरफ जी। Yes, we can do that. With the skin on, of course, why not? लेकिन ध्यान रहे कि आप स्किन को थोड़ा अच्छे से पानी में धो लें, आई मीन वॉश कर लें। Once the paneer gets a little bit of color, तब आपको बताऊंगा ये कैसे दिखता है। प्रतिभा जी, I manage to do live cooking alone. Yes, I do a lot of videos too. कोशिश करता हूँ जितना पॉसिबल है अच्छे से करने की। I'll show you the color.
This is how it's looking. You can actually smell the mustard, you know, and it's smelling beautiful. The mix of mustard and the herbs, amazing. Manjari madam, are you from Mumbai? Jagtap madam, are you from Mumbai too? Amazing. Yes. And because I'm alone, there's nobody I can share it with. You're from Atlanta. Okay. Wonderful. Wonderful having you. Right? इसको जो है हम निकाल लेते हैं अभी. Amazing. Beautiful. And this is how it looks. Wonderful, wonderful Kavita ji. Thank you so much for coming. Brilliant. Okay, now the grilled paneer is ready. The tossed potatoes is ready. Chef Vimal, of course you can come in. Please come. What I'll do is, this is the cabbage that I've cut into juliennes and boiled. This is the capsicum जो मैंने आपको पहले बताया था. ओके, गांधीनगर से क्या बात है, केम छो मजामा. This is the mango. सुनीता जी, मैं grilled tomato, pan grilled tomato with garlic tossed potatoes and tomato mustard dressing बना रहा हूँ आज. ये एक स्नैक और सैलड का कॉम्बिनेशन है. अब हम जो कैबेज है या फिर जो कैप्सिकम है और जो हमारा ये जो आम लिया है हमने यहाँ पे, इसको हमने मैरिनेट करना है. थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, एक या हाफ स्पून इसमें ऐड करके हमने इसको मैरिनेट करना है, रादर टॉस करना है इसको, so that the cabbage gets the flavor of the dressings. हालांकि हम बाद में इसके ऊपर ड्रेसिंग्स भी डालेंगे, बट जी रजनी मैडम. और उसी तरह से कैप्सिकम को भी इस ड्रेसिंग में हमने टॉस करना है. उसी तरह से जो आम है
उसको भी हमने इस ड्रेसिंग में टॉस करना है। ऑल राइट, ब्रिलियंट, क्या बात। ओके, हाँ जी, ये स्मेल विजन जो है ये तो फेसबुक को ही बोलना पड़ेगा। कैन यू शो मी द स्लाइस रॉ मैंगो? यस, दिस इज हाउ इट लुक्स। इज इट विजिबल? ग्रिल्ड पनीर कैसे बना? ऐसे बना। इसको हमने मस्टर्ड पेस्ट, ऑलिव ऑयल, हर्ब्स, सॉल्ट में इसको मैरिनेट किया, फिर उसके बाद कुछ वक्त तक रख करके उसको फिर हमने ग्रिल किया दोनों तरफ। ओके, अब वक्त आ गया है इसको प्लेटिंग करने का। आई एम टेकिंग दिस वाइट प्लेट, आई होप इट लुक्स गुड। जैसे मैंने आपको पहले कहा दैट द क्यूब्स ऑफ चीज़ दैट आई यूज्ड, अमूल चीज़, उसको मैंने इस तरह से कोरिएंडर और ऑलिव ऑयल, सॉल्ट में मैरिनेशन, सॉल्ट ज़्यादा तो नहीं बिकॉज चीज़ में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। इट इज़ रॉ मैंगो, लेकिन थोड़ा सा राइप हो गया है, रादर मैं राइप उसको किया था मैंने। सो देयर इज़ अ गुड कलर कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन आउटसाइड एंड द ब्यूटिफुल येलोइश ऑरेंज इनसाइड, बिकॉज आई बिलीव whenever you do plating of a food, कलर यानी रंग जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज there has to be a harmony of color, there has to be variations of color, because that is how plate should look. You know, plate is, a chef is supposed to be an artist. तो जो हम प्लेट में जो लेकर के आते हैं वो हमारा आर्ट होता है, ऐसे मैं समझता हूँ। ओके, दिस इज द ब्रिलियंट लुकिंग paprika mayo that I made. कुछ नहीं है, इसमें पेपरिका पाउडर और मेयोनेज़ हमने ऐड करा है। हाँ, हाफ राइप मैंगो भी बोल सकते हैं उस पर। Okay, now everything is ready. We're just waiting to plate and I'll start plating for you. ये हमने आपको दिख रहा है? ओके, प्लेटिंग कर ली, सॉरी ये डाल दिया। We'll place the paneer slices कुछ इस तरह से। ये जो कैबेज मैंने लिया था, दिस इज द कैबेज।
अब हम लेंगे ये जो कैप्सिकम, ओके। जो आलू है, we'll just start placing them. Now I'll add the raw mango. Can't see? Okay, I'll just show you. I'll show you. Can you see now? Okay. Here it is. Now I'm using the mango. इस तरह से ओके। अब इसमें आएगा ऑलिव्स, the cheese, and comes the sun-dried tomato. ओके। अब इसमें हमने इस ड्रेसिंग को डालना है। And last but not the least, we'll start some mint leaves, some coriander, okay. Here is your salad almost ready.
Brilliant. And I'll also add a bit of the oil from the tomatoes. And voila, this is ready. This is how it looks. I hope this recipe was good enough for all of you to try, and I tried to make it colorful using a bit of ingredients that I had. Look at the colors, look at the colors from green, different shades of green to different shades of red to the grilled paneer. I mean, this is how it looks. This is the end result of the dish that I made today. Grilled paneer, or rather grilled cottage cheese with garlic tossed potatoes and tomato mustard dressing with a little bit of vegetables and sun-dried oven-dried tomatoes and olives and coriander and mint and a beautiful, beautiful, beautiful tomato mustard dressing. I hope all of you enjoyed. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you. It looks amazing, isn't it? Thank you, Chef Kishle. Saw your presentation, it was amazing, wonderful. So this dish can be served as a starter, as a salad, a bit of warm, a bit of room temperature products, ingredients. It's a combination of both. So I hope you liked whatever I did today, और I hope आप इसको घर में ट्राई करें और मुझे बताएं कि ये कैसे बना, और whenever आप उदयपुर में आए, please visit our hotel. We do equally good dishes like that. Thank you very much. अगर कोई सवाल है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं. Yes, Sadanand, Chef Kishle is wonderful in desserts and he did a wonderful job today. Thank you very much. Thank you. It is a pleasure. Debashu, thank you very much. Please visit, जैसा आपने पूछा, my Insta handle is @chefrupam. आप उसको visit कर सकते हैं. Also my FB page by the name My Cooking My Style, which is also on YouTube. आप उसको भी follow कर सकते हैं. Hotel name is Shauryagarh, absolutely. Shauryagarh Resort and Spa and Shaurya Residency. The hotel name Anupama ji, it's called Shauryagarh Resort and Spa, Udaipur. Chetna madam, कैसे हैं आप? Thank you very much for coming in. Nice to see you. Thank you very much. Pleasure. Please, still lovely to try this.
processed cheese. I've used processed cheese, Amul processed cheese. Thank you very much. I will definitely write, yes. All right, thank you everyone. It was wonderful meeting you through this beautiful initiative from Amul. I once again thank Amul for this opportunity that they have given me to showcase whatever little bit of talent I have as a chef. And it was absolutely awesome to be here tonight, demonstrating a simple dish of ingredients which are readily available at home. And just hope and wish all of you good health. आप घर पे रहें, safe रहें, and until then meet. A very good evening. Thank you very much. Stay home, stay safe. Thank you. Good to see you too.